Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. Before starting, if you want to know that what I use for my YouTube channel, or if you want to know the products that I use, the equipments that I use, the link is in the description. You can go and check it out. The link is of Amazon, my Amazon page, and you can buy it from here. So now let's start the chapter. By the turn of the 18th century, the French people were fed up with the despotic behavior of the authoritarian king and the self-service aristocracy. The feudal landlords extorted high rents from the peasants and made them pay sundry dues. They also made them do unpaid labor. The king and his officials were constantly trying to levy new taxes, not sparing even items of daily consumption and use. The king would give monopoly rights to sell these daily use commodities to his favorites. They hiked prices as and when they wished. देखिए 18th सेंचुरी के एंड तक जो फ्रेंच लोग थे वो जो किंग के डेस्पोटिक बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, उनके सेल्फ सर्विंग ऑटोक्रेसी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे. वहाँ के जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट लेते थे पीसेंट से उनके लैंड के लिए, उनके जो लैंडलॉर्ड से थे, और काफ़ी ज़्यादा उनको सन्ड्री सन्ड्री ड्यूज जो रहते थे वो पे करने पड़ते थे. अब यहाँ पर और साथ में ही उनको लेबर का भी वर्क करना पड़ता था, जिसके लिए उनको पैसे भी नहीं मिलते थे. राजा और उनके जो ऑफिशियल्स थे वो हर टाइम पे नए टैक्सेस लगाते थे उनके ऊपर, और कोई भी आइटम जो है वो यहाँ पर उनके डेली कंजप्शन का जो भी आइटम है उस चीज़ को उनको मतलब डेली कंजप्शन के आइटम्स पे वो लोग टैक्सेस और ज़्यादा लगा दिया करते थे. और यहाँ पर जो राजा है वो कुछ जो डेली कमोडिटीज़ थी वो अपने फेवरेट्स को कुछ कम दाम पे या कुछ उनको उनको डिस्काउंट करके दे दिया करती थी, और बाकी लोगों के लिए जो प्राइसेस रहते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करती थी. द फ्रेंच मिडिल क्लास wanted to end feudalism in the country and replace it with a regime that favored the interest of trade and industry. To some extent, these people were influenced by the democratic ideas of Locke, Rose, Diderot, and other thinkers. The French soldiers were also fighting in the American Revolution at this time, so the revolutionary ideas from America spread in France. देखिए जो फ्रेंच में जो मिडिल क्लास थे वो ये जो फ्यूडलिज्म है, कंट्री में जो फ्यूडलिज्म हो रहा था उसको ख़त्म करना चाहते थे, और उसको अपने मतलब वो कन्वर्ट अपने जो भी ट्रेड और इंटरेस्ट है जिनको उनमें जिनको इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा फेवर करना चाहते थे. कुछ कुछ हद तक जो लोग थे वहाँ के वो जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे जैसे कि लोकी, रोजे, डेटोड और बहुत सारे जो अदर थिंकर्स थे उनके आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे. फ्रेंच सोल्जर्स जो थे वो भी अमेरिकन रेवोल्यूशन में उस टाइम पे फाइट कर रहे थे, तो जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ था अमेरिका का वो यहाँ पर फ्रांस में भी स्प्रेड होने लगा. When Louis XVI, when Louis XVI was on the French throne, he faced a financial crisis in 1774. The wars the country was fighting, including helping the Americans, were putting a heavy financial burden on the state. The king failed to resolve the crisis, so the only solution left for him was to levy more tax. देखिए जो लुई 16 थे वो जो फ्रेंच थ्रोन पे बैठे तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस 1774 में फेस करनी पड़ी. उस वक्त पे कंट्री जो थी वो वॉर फाइट कर रही थी और साथ में अमेरिकन की हेल्प भी कर रही थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया था, फाइनेंशियल बर्डन आ गया था पूरे स्टेट के ऊपर में. तो यहाँ पर किंग जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने के लिए उसने सॉल्यूशन में यही निकाला कि उन्होंने ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो और ज़्यादा लगा दिए. द किंग called a meeting of the States General and presented his proposal for new taxes. The first and second states had sent 300 delegates each of the assembly, while the third state had 600 delegates, mostly the wealthy and learned from the middle class. These delegates were elected by the villages and towns, but there was no representation of women, peasants, and artisans. Even so, they submitted 40,000 complaint letters listening the problems of their constituencies of the state general. देखिए
अब यहाँ पर राजा ने उस चीज़ का सॉल्यूशन सोचा कि वो ज़्यादा टैक्सेस और लगा देता है, तो उसके बाद उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जनरल, स्टेट्स और सारे लोग वहाँ पर बनाए, और उसने टैक्स के बारे में वहाँ पर प्रपोज किया। जो पहले और सेकंड सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने अपने 300 डेलीगेट्स भेजे हुए थे। वहीं पर थर्ड स्टेट जिसमें कि आपका सारे लोग आ जाते हैं, बाकी के सारे जो कॉमन पीपल है वो आ जाते थे, उनके 600 डेलीगेट्स थे। लेकिन जो वेल्दी और मतलब जो 600 डेलीगेटीज थे उसमें ज़्यादा लोग जो या तो वेल्दी हैं या फिर मिडिल क्लास के हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर थे। ये जो डेलीगेट्स थे वो विलेजेस और टाउन्स से सेलेक्ट किए जाते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन विमेन का, पीसेंट्स का और आर्टिशियंस का कोई भी उनके बदले वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इसके बावजूद वहाँ पर करीब 40,000 कंप्लेंट लेटर्स आते थे इस कैटेगरी के लोगों से, और वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कंसिस्टेंसी में बताते थे। As we have seen, each state had the right to one vote according to the rules, but the third state demanded that voting should be conducted in the full assembly this time, which would give each delegate one vote and strengthen their hand. This was a democratic principle contained in Rousseau's book on the social contract. The king turned down the proposal. The third state delegates protested and walked out of the assembly. अब जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जो स्टेट के जो मतलब हर एक को क्या रहता था, वोटिंग का राइट रहता था रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने डिमांड किया कि वोटिंग जो है वो पूरे असेंबली में कंडक्ट की जानी चाहिए और सभी को एक वोट का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, और उनके हाथ जो है वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो आइडिया था वो उन्होंने रोजे की बुक ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया था। ठीक है, जो किंग थे उन्होंने ये प्रपोजल को हटा दिया, और वहीं पर जब किंग ने ये प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया, तो जो थर्ड स्टेट डेलीगेटीज थे वो वहाँ से उन्होंने उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया और वहाँ से चले गए, असेंबली से चले गए। दे बिलीव्ड दैट देयर वर द ट्रू स्पोक्सपर्सन ऑफ द फ्रेंच पीपल, सो दे अनाउंस्ड देयर ओन नेशनल असेंबली ऑन June 4, 1789। These delegates assembled in the indoor tennis court in the city of Versailles. They swore a pledge that the assembly would continue until a prepared constitution that curtailed the power of the king. The National Assembly, now called the National Constituent Assembly, got down to the work of preparing a democratic constitution. देखिए, उनका ये मानना था कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो ट्रू स्पोक्स पर्सन है फ्रेंच लोगों में, वो वे खुद वो लोग ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ से जाने के बाद में अपनी खुद की असेंबली जो है वो बनाई, नेशनल असेंबली बनाई। June 4, 1789 में जो ये डेलीगेटीज थे वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट पे असेंबल हुए सिटी ऑफ वर्सलिस में। वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उन्होंने प्लेज लिया कि वो अपनी असेंबली जो है वो बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये जो पावर है, किंग वाला पावर, उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी उसको अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाने लगा, और उसके बाद में वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रिपेयर करने लगे। The king expressed his willingness to establish a constitutional monarchy, but the aristocracy opposed the new constitution and created obstacles in the assembly because it did not want the feudal system to be dismantled. देखिए, जो राजा था उन्होंने उन्होंने अपना विलिंगनेस दिखाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो वहाँ के एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो बाकी के जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो लोग थे, वहाँ पर उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उन्होंने क्रिएट किए, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो डिसमेंटल ना हो। एट द टाइम, items of daily consumption were becoming so costly that they were out of the reach of the common people. The crops had been badly hit by cold weather and the cost of bread had become exorbitant. One day, an angry mob of women raided the shop in Paris. The king called out the army to control the mobs. Angered, the crowd stormed the Bastille prison, a symbol of the monarchy, on July 14, 1789. The commander of the fort
was killed and the prisoner were set free. उस वक्त पे ये जो इस टाइम पे जो वो मतलब यहाँ पर जो आपका किंग जो जब ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लड़ रहे थे, उसी वक्त पे जो डेली कंजप्शन का जो आइटम्स जो थे वो उसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो कॉमन पीपल के रीच से बहुत ज़्यादा हाई था। उस वक्त पे क्रॉप्स जो थे वो कोल्ड वेदर के कारण ख़राब हो चुके थे और एक ब्रेड का कॉस्ट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। एक दिन एक एंग्री मॉब ने मतलब बहुत सारे जो वहाँ पर लोग थे, बहुत ज़्यादा जो गुस्सा कर रहे थे, वो एंग्री मॉब विमेन ने एक पेरिस के शॉप में पेरिस के शॉप में वो क्या किया, रेड कर दिया और वहाँ पर घुस गए। अब वहाँ पर किंग ने अपनी आर्मी को भेजा ताकि वो जो मॉब्स हैं उनको कंट्रोल कर सके और जो एंगर्ड और जो क्राउड थे उनको वहाँ पर से बेस्टाइल प्रिजन में भेज दिया गया। ये था आपका एक सिंबल था मोनार्ची का, जो कि जुलाई 1789 में था। जो कमांडर थे फोर्ट के उनको भी मार दिया गया और जो प्रिजनर्स थे वहां से फिर फ्री कर दिए गए। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से देखेंगे इंस्पायर्ड बाय द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। थैंक यू।